پاکستان میں سیلاب کا خطرہ، بھارت کا 24 گھنٹے میں پاکستان سے دوسرا رابطہ۔ دریائے توی کے بعد دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑنے کی پیشگی اطلاع دی۔ پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کیا۔ بھارت نے اطلاع ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے دی۔ سینتاس معاہدے کے تحت معلومات انڈس کمشنر کو دی جانی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرے۔ بھارت کی جانب سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر منفی اثرات ڈال سکتی ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ ہیڈ پنج نٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، اٹھ شریف کے قریبی بستیوں میں پانی داخل۔ سیلابی ریلا پہوڑا والا کے قریب حفاظتی بند بہا لے گیا۔ دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ بلند۔ قصور کے دیہات والے والا اور عارف والا کی حفاظتی بند ٹوٹنے سے تباہی، پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ جلال پور پیروں والا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستی حضور بخش سیلاب کی زد میں آ گئی۔ پرائمری اسکول بھی ڈوب گیا۔ بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں 3 مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ منچن آباد کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ چک چاویکا میں مقامی افراد کا بنایا بند ٹوٹ گیا، لوگوں کا انخلا جاری۔ ظفروال کے سکروڑ کے مقام پر نالا ڈیک کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، درجنوں دیہات زیر آب۔ بند کی مرمت کا کام جاری۔ آزاد کشمیر سے آنے والا بھیمل کا نالا بھی وسطی اور جنوبی پنجاب میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، کسانوں کا کروڑوں روپے کا نقصان، سینکڑوں گھر بھی سیلابی ریلوں کی نظر۔ متاثرین اپنی مددات کے تحت نشیبی علاقوں سے نقل مکانی کرنے لگے۔ پنجاب حکومت کا کوئی نمائندہ مدد کو آیا نہ انتظامیہ نے دکھوں کا مداوع کیا۔ زندگی بھر کی جمع پونجی لہروں کی نظر ہونے کا غم سہنے والے سیلاب متاثرین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں شانگلہ اور بنیر میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ بنیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین میں خشک راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری اشیاء کی تقسیم۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیمز نے متاثرین کا طبی معائنہ کیا۔ لاہور کی فضاؤں پر بادلوں کے ڈیرے، لکشمی چوک، بادامی باغ، چبرجی، شادرہ، جوہر ٹاؤن، فیروز پور روڈ، سبزہ زار، گلشن راوی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ رائے ڈڈا پلاٹ، سندر اور مانگا منڈی میں بھی وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہنے کی پیشگوئی۔ دوسری جانب کراچی سمیت سندھ میں 27 اگست سے شروع ہونے والی بارشوں کا امکان ختم ہو گیا۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال، ایران کی مدد کی پیشکش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے تعاون کی پیشکش، کہا آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے ایران کی جانب سے امداد کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس میں بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کمل شوزیب، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا سمیت 59 ملزموں کو 10 سال قید کی سزا۔ اسماعیل سیلا، شاہد جاوید، فرح آغاں، فرخندہ کوکب، رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ اقبال، انصر اقبال کو بھی 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 16 ملزموں کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ فواد چودھری اور زین قریشی کو بری کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جاوید اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مقدمے میں نامزد 109 ملزموں میں سے 75 کو سزائیں دی گئیں، 34 کو بری کر دیا گیا۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔
सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने खिताब में कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का गजा में जंग बंदी, इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी है। इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर गजा में एकतरफ़ा कार्रवाई की। फ़लस्तीन की सरजमीन में मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनियों को यकीन है मुस्लिम उम्मा हमारे साथ खड़ी है। गजा पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी, मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। नसीर हस्पताल पर हमले में 4 सहाफ़ियों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ियों में हस्साम अल मिस्री, मोहम्मद सलामा, मरियम अबू ज़का और मुआज़ अबू ताहा भी शामिल हैं। अब तक इसराइली हमलों में 200 सहाफ़ी जान की बाजी हार चुके हैं। 2 बच्चों समेत 11 अफराद ग़ज़ाई किल्लत की वजह से जान हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 300 हो गई। इसराइली फ़ौज का यमन के दारुल हुकूमत सना में सदारती महल के करीब हमला, 6 अफराद मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म को अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया। गजा में इसराइली सफाकियत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भर में एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन समेत 20 से ज़ायद शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने, जबरी कहत को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स का इफ्तिताह कर दिया। नए निज़ाम के तहत ख़वातीन को घर बैठे रकूम मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, डिजिटल वॉलेट्स का इजरा बड़ी पेशरफ्त है। कैशलेस इकॉनमी की हौसला अफजाई करते हैं। पूरी मईशत को कैशलेस की तरफ ले जाएंगे। प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो की रूह को सुकून मिलेगा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में कायम खुफिया तरबियती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों का इंकशाफ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रा के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द बनाम ज़माना रा की पुष्पनाही में सरगर्म है। पश्तो और दरी ज़बानों में बात करने वाले गैर मकामी दहशत गर्द किराए के कातिल हैं। गैर मुल्की दहशत गर्दों को कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्टमेंट सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में NA 143, NA 175, NA 195 और PP 98 में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला। एक्स पर लिखा, कल बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। हम्माद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। हम्माद अजहर का कज़न अरसलान अहमद को टिकट देने का ऐलान। हम्माद अजहर की हमशीरा इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मुकर्रर। एक्स पर पैगाम में कहा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं और नशिस्त जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसन शिनावत्रा का एशाया। थाईलैंड के साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पुरतपाक खैर मकदम। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और अवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत 1000 से ज़ायद लैपटॉप्स गायब होने का इंकशाफ है। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी इजलास में लैपटॉप स्कैंडल ज़ेर गौर
ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 89 लैपटॉप्स चोरी जबकि 922 का रिकॉर्ड ही नहीं। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 784 लैपटॉप्स रिकवर कर लिए गए हैं, 227 अब भी गुमशुदा हैं। लैपटॉप्स गायब होने से हुकूमत को तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से 757 गुमशुदा लैपटॉप्स का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। लैपटॉप्स चोरी की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ज़ेली कमेटी ने तहकीकात और FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी है। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को सील कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स का पैकेज कल इक्तिसादी राबता कमेटी में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार की कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग इजलास की सदारत फारूक सत्तार ने की। कहा यूटिलिटी स्टोर्स के 10 से 11 हज़ार मुलाजमीन हैं, सिर्फ 300 मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा, बाकी मुलाजमीन को खुसूसी पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। कल यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन के माली पैकेज की ECC से मंजूरी लेंगे। पाकिस्तान रेलवे का कराची से लाहौर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेलवे लाइन CPEC मंसूबे का हिस्सा होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि $6.8 अरब की लागत से अपग्रेड होने वाली कराची से पेशावर मेन लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। बुलेट ट्रेन 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स में हनीफ अब्बासी से मुलाकात। खुसूसी इजलास के दौरान बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेन की सिक्योरिटी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। रेलवेज़ की अराजी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का भी फैसला। इजलास में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट शहरियों की जेबें साफ करने के लिए तैयार। लाहौर समेत पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। शहर में 5 मरले के घर को 300 और देहात में 200 रुपये कूड़ा टैक्स देना होगा। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। शहरों में 5 से 40 मरले तक इमारत को माहाना 300 से 5,000 रुपये तक अदा करना पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि जायदाद के तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं हैं। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास पर खौफनाक हादसा। मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। सरकारी इदारे का मुलाजिम और सास जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार फार्मा कंपनी का मुलाजिम जान से गया। पुलिस ने मिनी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद और ज़्यादती के इल्ज़ाम में स्टेज अदाकारा समर राना को गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकारा के घर में 5 मुलज़िमों ने मुलाजमा को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया, वीडियोज़ भी बनाते रहे। वारदात में मुलव्विस दीगर मुलज़िमों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। रूस जंग बंदी नहीं चाहता, इसके पीछे पेचीदा वजूहात हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंकशाफ। कहा, हमारा रूस पर कंट्रोल नहीं होता तो रूस यूक्रेन जंग पहले ही खत्म हो चुकी होती। रूस कुछ बुनियादी शराइत पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन तनाज़ा हल होने के कोई आसार न होने के बावजूद इसमें पेशरफ्त हो रही है। यूक्रेन का रूस के एटमी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। रूसी शहर कर्स्क में ड्रोन हमले से बिजली की पैदावार मुतासिर। ड्रोन हमले में ताबकारी का कोई सबूत नहीं मिला। ओस्लोगा टर्मिनल पर हमले से आग भड़क उठी। रूसी हुक्काम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 160 ड्रोन्स मार गिराए। भारत पर इजाफी टैरिफ क्यों लगाया? महाराष्ट्र में सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में ट्रंप का देवहेकल पुतला सड़कों पर घुमाया गया। पुतले पर अमरीकी सदर के खिलाफ प्लेकार्ड्स भी लगाए गए। लिखा, जो टैरिफ से डरा रहा है भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है। चीन समुद्री तूफान की जद में सानिया और हैनान जजीरे में शदीद बारिशें।
طوفانی ہواؤں سے متعدد درخت گرا دیے گئے، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند کرنا پڑ گئے۔ سمندری طوفان آج ویتنام سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ حکام نے ساحلی علاقوں پر مقیم 5 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی۔ ایمان فاطمہ، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ قومی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔